मुझे समझना है तो मुझ में उतर कर देखो, मुझे समझना है तो मुझ में उतर कर देखो, किनारों से समंदर की गहराई नापी नहीं जाती. The woman we are going to talk today is a former minister of Jammu Kashmir, now Union Territory, then state. She is presently in charge BJP headquarters JNK and in liaison with headquarter BJP Delhi, in charge Beti Bachao Beti Padhao. One of the top most 50 politicians of India, and followed by Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Bhai Modi ji. And for me, she definitely is a woman of substance. Presenting in front of you, Madam Priya Sethi. Very warm welcome, ma'am, in the right conversation for the right news. Thank you so much, Kusum. Thank you so much. प्रिया मैम, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे होगा वो ये नहीं होगा कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, बिकॉज यू हैव डन अ लॉट इन योर लाइफ, दैट्स व्हाई यू आर हियर. आई जस्ट वांट टू टॉक टू द पॉइंट. व्हाट मेड यू टू जॉइन द पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स में आप कैसे आई? Politics was never my zona. I never wanted to be a part of it. Because I belong to a family which was into a service class, and studies were, priority for them. And when I got married into a family which was, socially attached to so much things in and out, it happened that because of reservation, I would not, say कि I was already interested into politics, but एक पार्ट ऑफ लाइफ आया जिसके अंदर ये वार्ड रिजर्व हुआ, रिजर्वेशन हुई लोकल बॉडीज में जो होती है जी. और उसकी वजह से आई वाज picked up as a candidate from Jammu, from ward number 10. Being a corporator, being into this entire world of making something between it's a link between the bureaucracy and the masses. So I could understand well, and I could understand well the power of that being a corporator and doing so much for your people, society, for your people, for your ward, for your and even for the women folks here. Yes. If you will remember, never ever a woman used to come out of their houses for public rallies or any other such public gatherings. They would only dissociate. I am talking about the main city. They would always dissociate from the political parties. Now I'm so proud. Every booth of this constituency, every has at least 5 to 6 women working for the BJP. You have been a very great inspiration. Yeah. So it happened कि after into politics, when I came to know about what is this, तो मुझे दूसरा परिवार, पहला परिवार भारतीय जनता पार्टी लगना शुरू हुआ और फिर अपना देश और फिर ये जो अपना घर लगना शुरू हुआ. मुझे लगा कि हम जिसके लिए शायद भगवान की भी एक ईश्वर की तरफ से भी एक हमारे तरफ एक रहती है कि हमें इस काम के लिए सपोर्ट किया जाता है कि ये काम आपको करना है. Exactly, you start getting those signs कि आपको आगे ये करना है. Being an educationist, मैंने when we look back at you, you were an educationist and you preferred education as your field when you became the minister. मुझे लगता है कि वो एक बहुत important point था जब you were minister for education and then tourism and then culture, and you worked for each and every department. As an educationist, you were very calm and easygoing, बहुत निर्मल किस्म की शख्सियत. And when I see you as a politician, I can find that aggression at the times जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. So was it a sudden change or? No, it was. I think everything is inbuilt somewhere or the other. Yeah, into. actually. And when you get one instance, so you just work on your principles. That's all. I never compromised on my principles. True. I was an administrator earlier also because I was running 2 schools, play schools. So I knew what how my PR was very great. I used to talk so well, and I used to convince people so well, and I was very soft spoken that. And the main motive for taking me into this, to giving me education was because my background was
completely educationist. Yes. I was already holding two schools and I was running that schools very successfully. They wanted me to, indulge into things. But will you believe it? I had never stepped up the civil secretariat before being a minister. Yeah, that I know. Yeah, I had never stepped up. So this came entirely into, this is something which God has gifted you. And when you listen to your instincts somewhere or the other, and when you keep your ideologies intact, when you don't compromise on things, then things, come in your way, and it suddenly people from your, we have very good officers, we have very good bureaucrats also, which start helping you out into this thing. So when your intentions are clear, when you are clear in your mind and intentions, people around, in and around you, start helping you out. They, they even start building your such a good personality somewhere or the other. When you don't when you don't look into your self-interest somewhere or Yes. the other, you have to build it yourself. That was the which motto I took it up, and I wanted to serve Jammu. That was my motive. Because Jammu had been neglected from so many years. Yeah, exactly. My main motive was to serve the people of Jammu. What was dominating? One side was dominating. We are two sisters. Kashmir and Jammu are two sisters. So one cannot dominate the other. The other. The other one. That was quite close to my heart somewhere or the other. So I wanted कि Jammu should also develop. Kashmir is developing, but Jammu should always develop. And that was the motive, and we took it up. Yeah. On that note, I remember people, as a people, they forget it very easily. I want to tell the people, because this is what I came to know at one point of my career, कि जब आप एजुकेशन मिनिस्टर थी, कल्चर की, टूरिज्म की, then there was some sort of कुछ decisions about the some school DAV land was going, there was a meeting going on, and then you took up that step कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये land जो स्कूल के लिए reserved है, this is not going to be leased for somebody else for some other business purpose, and you took that a bold step. और मुझे याद है कि I'll quote Dr. Agnishekhar ji. He told me this incident that she was so aggressive across the tables with all them, and finally it went to DAV land. So I want you to tell the people. DAV एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर से बहुत बढ़िया एमिनेंट पीपल आपके अपने समाज के भी बहुत निकले हैं वहाँ से. और एक टाइम पे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था राजबाग के अंदर, कश्मीर के अंदर, श्रीनगर की मेन सिटी के अंदर, जिसको टेंटेटिवली कुछ पॉलिटिशियंस उसको शायद उनके अपनी रीजनेबल था कि वो क्या करना चाहते थे, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉल खड़ा करना चाहते थे क्या. तो जो ओनर है या जो ट्रस्टीज था उनको बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा था. तो when they pleaded, जो इनके ओनर्स हैं या जो इनके ट्रस्टीज हैं, when they came up to me, I called up the director, I called up even the commissioner, I involved him also, and I made a purpose to visit that place. Yes. Because if a minister goes and visits that place, then it's a clear indication that this thing is very important. Yeah, you're not going to. Yeah, you are not going to whatever the reasons or plans may be. When you are close, but this institution had given so many services to the society somewhere or the other. Why a school should be? And the trustees did not want it to shut down, and even the people in and around that surrounding didn't want. So when I went there and when I spoke up to them and when I spoke up to the entire people in and around, they wanted this institution to come and run also. Then I made a point that this should not go, into the hands of some people who are quite businessman people, and they wanted to make it as a bigger something or the other. Yeah. But we wanted that to stay, and for God's grace, that was saved somewhere or the other. And I am thankful to God. Whatever He gave me on that instant, I took my decisions on my own, and I could save that precious. Yeah, you have always taken the very strong decisions. I could save that. And today I'm going to make it very सनसनीखेज खुलासा. So I came to know कि आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं they tried to fix it up for you. That reason, let's fix it up with Priya Sethi. See, मैंने यही कहा कुसुम, जब आपके इंटेंशंस बहुत क्लियर होते हैं और आप बहुत अपने एक संविधान को लेके चलते हो, आप एक इंटेंशंस को लेके चलते हो,
तो मुझे लगता है भगवान भी आपके साथ अंग संग कहीं बैठा होता है, और जितनी भी लोग आपके जो आपके कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप ही उसी कॉन्स्पिरेसी के अंदर डाई एंड डेन हो जाते हैं। तो कुछ नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं वो फिशिंग कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लूप होल्स निकल आए प्रिया सेठी की उसमें से कि व्हाई शी इज इंटरेस्टिंग इन सच अ बिग इंस्टीट्यूशन। तो बट वो सब कुछ क्लियर हो गया थोड़े टाइम के अंदर, एंड आई एम होपफुल कि अब दैट इंस्टीट्यूशन रन सो वेल नाउ। यस मैम, you were the first ever woman minister from BJP from Jammu, and that too taking decisions at the ground of Kashmir. You know, जैसा कि आपने खुद बताया कि दो बहनों के बीच में one was always dominating and one was dominated. So how difficult was it for you? जैसे कि मैं बात करूँगी, you were minister for tourism also, and I know because I have been associated as an anchor for so many programs at the level of bureaucracy too. So I know कि हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो हमारा मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, उसको सेव करने के लिए भी आपने बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट जो फाइल किया गया था, यू हैड टू आपको उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी. सो आई वॉन्ट यू टू टेल द पीपल अबाउट दैट ऑल्सो. मुबारक मनी हेरिटेज जो है, मुबारक मंडी इज quite very dear to all the Dogras here, including me also. So when because I was given the Ministry of Tourism in 2015 when Mehbooba Mufti ji came after 15 she came in 16 I think. तो उससे पहले मेरे पास कल्चर था जी. तो ये डिपार्टमेंट पहले टूरिज्म के पास होता था, लेकिन जो क्योंकि मैं कल्चर की मिनिस्टर भी थी तब टूरिज्म बाद में आया मेरे पास, तो मेरे पास सिर्फ 1.5 साल था इसको कहीं ना कहीं अपने उसको मेंट करने के लिए. सबसे पहले इसमें ये ज़रूरी था कि उस कल्चर अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट से मैं कल्चर में लेकर आऊँ, ताकि ये जो चीज़ें हैं ये आने वाले समय पे आगे और अग्रसर हो पाएँ. लेकिन उन दिनों में जो थे द्रावू साहब हमारे मिनिस्टर थे कल्चर के, ही वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड कि ये खड़ा होना चाहिए. तो उनकी हेल्प से और अपने स्ट्रॉन्ग मिशन से हम लोगों ने इसकी मीटिंग्स लेनी शुरू की जी. तो होल सोलली क्योंकि वो बहुत बिजी रहते थे, विद फाइनेंस भी था शायद उनके पास तब उन दोनों, तो उन्होंने होल सोल जो था एक कमेटी बिठा के उसमें कहा कि यू टेक द डिसीजंस, बट एक बार बता दिया करो, लेट द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो. बट दिस वॉज वेरी क्लोज टू मी. तो जो एग्जीक्यूटिव के अंदर जो मेंबर्स हमने डालने थे, जो अच्छे रिनाउंड जिन्होंने इस मुबारक मंडी के अंदर काम किया है, जिन लोगों ने एमिनेंट पीपल ने, जैसे आप लेंगे आपके अजय खजूरिया जी हैं, टूरिज्म के डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने बहुत इसमें काम किया. आपकी पूनम चौधरी हैं, वो HOD हैं वहाँ की, जो फाइन आर्ट्स के अंदर इसके ऊपर बहुत इन्होंने थीसिस लिखी हैं और PhD भी की है. तो कहीं ना कहीं इन ऐसे लोगों को जो नॉलेजेबल लोग हैं उनको हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव बॉडी में लाए ताकि हम कुछ इसका एग्जीक्यूशन कर पाए. ASI इतना स्लो पेस पे काम कर रही थी इसके अंदर कि उन्होंने पिछली सरकारों ने उसी मॉन्यूमेंट को हाथ लगाया जो शायद 80% ठीक था लेकिन 20% ही खराब था. लेकिन वो मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर्स का क्या होना था जो बिल्कुल जर्जर हालत में, जिसका 20% ही अभी बाकी था और 80% खत्म हो गया था. तो लोगों को दिखाने के लिए वो कर रहे थे. हमने इसका 4 साल का प्लान बनाया. मैंने एक्सपर्ट्स भी बुलाए. IIT एक उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो IITian थे और वो बेंगलोर से यहाँ पर आए. उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर वगैरह देखा. उन्हें हर चीज़ उसको देखकर, हमारी एक अर्पना टंडन है यहाँ की जो बाहर काम करती हैं, इटली ने उनको एंगेज किया हुआ है. हमने उनको विदाउट पे जो है वो मुझे कंसल्टेशन देती थी, बार बार बताती थी कि ये स्ट्रक्चर हम ऐसे खड़ा कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम ये कर सकते हैं. और अगर हम बहुत इसके अंदर पैसा लगाएं, अगर हम 300-400 करोड़ रुपया इसके अंदर लगा दें तो हम 4 साल के अंदर मुबारक मंडी को खड़ा करके दे सकते हैं. और लेकिन ASI नहीं करेगा, क्योंकि ASI ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम 2 करोड़ से ज़्यादा का काम, हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं, हम 2 करोड़ से ज़्यादा का काम इस मॉन्यूमेंट पे कर ही नहीं सकते साल के अंदर. तो अगर जिस मॉन्यूमेंट को 400 करोड़ लगना है और वहाँ का जो एजेंसी है वो ये लिखित में आपको दे रही है कि हम 2 करोड़ से ज़्यादा का काम नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो यू नीड टू हायर वो एजेंसीज जिन्होंने ऑलरेडी रेस्टोरेशन का काम किया हो, जिन्होंने इस पर काम किया हो. हमने बहुत मेहनत से टेंडर्स पास किए, बहुत ही एफिशिएंटली इसको हमने टेंडरिंग पे किया और हमने एक कंसल्टेंट को हायर किया. और उस कंसल्टेंट ने
बहुत अच्छे से एक प्लान बना के दिया, जिसके अंदर ये जो अभी मुबारक मंडी का रिहेबिलिटेशन प्लान है, जिसके अंदर वो लोग करते हैं कि हमारा दरवाज़ा बंद कर दिया गया, हमें पीछे से निकलने नहीं दिया, पीछे से वो लेके जाते हैं, उनका पूरा प्लान था, रिहेबिलिटेशन प्लान था। और पहले 2 साल के अंदर ऐसा प्लान था जिसके अंदर आपकी मूवमेंट जो है मुबारक मंडी के अंदर शुरू हो जाती और रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन हो जाता। ग्रेट। वहाँ पर इतनी ज़्यादा आपकी पुराने चीज़ें पड़ी, आर्टिफैक्ट्स पड़े हैं, वो डिस्प्ले हो जाती। उसके अंदर एक वो भी आइटम था जिसको हम वो रिस्टोर कर सकते थे, सारी की सारी आइटम्स को भी, मॉन्यूमेंट्स को भी। आर्कियोलॉजी और उसका भी एक वहाँ पे है, उसको भी हमें रिस्टोर करने का पूरा था। वहाँ पे एक मैन्युस्क्रिप्ट्स का एक बहुत बड़ा वो पड़ा हुआ है, उसको भी हमने रिस्टोर करने का पूरा। तो एक पूरा प्लान 4 साल का हमने बना के रखा था कि इन 4 इयर्स में हम फर्स्ट ईयर में ये करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो इतना पुराना मॉन्यूमेंट है, कितने टाइम पे पड़ा, इसकी लेज़र से एक होती है चीज़, जिसके अंदर लेज़र से मैपिंग से ये पता चलता है कि ये कितनी पुरानी मॉन्यूमेंट है। हमने उसके लिए भी मतलब लोगों को हमने वो प्लान में रखा था कि हमको पता तो चले ये मॉन्यूमेंट, अगर ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है तो ये कितने साल पुराना स्ट्रक्चर है। मुबारक मंडी में भी कोई ये नहीं कह सकता ये पुराना, कितना पुराना स्ट्रक्चर है, क्योंकि कहीं है ही नहीं, कहीं कुछ बात ही नहीं है उसके बारे में। तो ये चीज़ें सारी प्लान करके हमने 4 साल के लिए रखी थी। लेकिन जब मंत्रालय गया, उसके बाद दुख ये होता है कि जब आप इतने मीटिंग्स लेकर इतनी एग्रेसिवली काम करते हो, अगर मुझे 2 महीने और 4 महीने मिल जाते तो मुझे लगता है हम वो 4 ग्रो भी कर जाते उसको। और जितना पैसा है हमें गवर्नमेंट से भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही इसको जनरेट करते आने वाले समय के अंदर। तो इस तरह का जो प्रावधान मैंने बनाया था, क्योंकि ये बहुत डियर है सबके लिए, जो हमारे लोग बाहर बैठे हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी इसके लिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। और बहुत सारे लोग जो थे वो चाहते थे कि वो जो CSR फंडिंग के अंदर इसको हम करें, और हम लोगों ने भी CSR फंडिंग में ही अप्रोच करना था, क्योंकि हम चाहते थे कि लोग इसमें इन्वॉल्व हों। जब तक आप दिल से लोगों को इन्वॉल्वमेंट नहीं करोगे, तब तक एक मॉन्यूमेंट उसकी अपनी जीती जागती उसमें नहीं आएगा। गवर्नमेंट पैसा लगा रही है तो वो अलग बात है, लेकिन इसके अंदर 300-400 करोड़ के अंदर ये मॉन्यूमेंट एकदम खड़ा होके लाइव हो जाता है एकदम जी। अब अफसोस की बात यह है कि उसके बाद जो अफसर आए हमारे जाने के बाद, उन अफसरों ने हमारी फाइलों को पीछे कर दिया और उस पर देखा ही नहीं, ना पढ़े, या तो उनको समझ नहीं है इस चीज़ की कि किस बारे में बात कर रहे हैं। और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप इस पर बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कहना चाहती हूँ, ये ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसको अगर कोई खड़ा करेगा तो उसकी जिसकी विजन होगी वो खड़ा कर पाएगा। और कोई ब्यूरोक्रेट्स, आप सोचो कि 10 आप ब्यूरोक्रेट्स इकट्ठे कर दोगे और आप इसको कर दोगे, खड़ा कर दोगे। एक चीफ इंजीनियर का क्या काम है यहाँ पर, जहाँ पे उसकी आर्किटेक्चरल जो इसकी आर्किटेक्ट है उसको ही नहीं समझ पाएगा वो जी, उसकी स्टोन्स को नहीं समझ पाएगा, उसकी बिल्डिंग के ब्रिक्स को नहीं समझ पाएगा, तो उसका क्या फायदा होगा। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसको दिल और दिमाग और विजन चाहिए और एक मंशा चाहिए कि आपको उसको खड़ा करना है, करने की इच्छा, बिल्कुल इच्छा होनी चाहिए। अगर आप ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में दे दोगे, मैं एलजी साहब से भी अपील करूंगी आपके अंदर, आपके माध्यम से, कि इसको अगर आपने कहीं लाना है, किसी मुकाम पे लाना है, तो आप खुद मॉनिटर कीजिए, क्योंकि आप खुद भी एक उस पे रह चुके हैं। आप इसको कम से कम इतना ध्यान दीजिए कि आपके होते होते ये मॉन्यूमेंट खड़ा हो जाए। और 4 साल का इतना बढ़िया प्लान इसका बना हुआ है कि आप उस प्लान को कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। ऑन दैट नोट आई वांट टू आस्क यू मैम, जब वो प्रोजेक्ट फाइल आप लोगों ने सबमिट की थी, आई केम टू नो थ्रू मीटिंग्स, मुझे ये पता चलता था कि you people tried to sabotage, especially if I talk about then chief minister of the then state. तो मुझे लगता है कि आपकी उस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए बहुत सारे तरीके भी अपना गए थे, और उसके बावजूद आपने लड़कर झगड़कर और प्यार से हर तरह से इसको सामने रख के एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन बनाई थी कि हम इसको ऐसे करेंगे। उसके बावजूद भी जब ये सबोटाज होता है तो व्हाट सिचुएशन यू फाइंड? मैं उनको बहुत कम बताती थी चीज़ें क्योंकि ब्रीफिंग में बहुत कम करती थी उनको, क्योंकि मुझे कई बार उनकी बातों से कई चीज़ें बोली नहीं जाती, इंस्टिंक्ट आ जाता है कि वो क्या इंटरेस्टेड है और उसमें क्या नहीं इंटरेस्टेड है, और किस चीज़ को लेकर वो मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो ये एक तो ये आपका मुबारक मंडी का है। तो एक और इंसिडेंट है रोप वे का, आपको मैं बता दूं, या बहुत बड़ा। आई वाज कमिंग टू दैट आल्सो।
मुबारक मंडी तो हमने किया जैसे भी करके, उसका प्रोजेक्ट हमने बनाया, अब इसको एग्जीक्यूशन का टाइम जी। था, एग्जीक्यूशन के टाइम के ऊपर पूरी The time will come again. I'm definitely hopeful about that. somebody should come and take Yes. up this. You know, this is such a prestigious project for everybody. For even Jammu, we have seen so many places in Rajasthan. इतने बड़े बड़े महल हैं वहाँ पर, इतने सुंदर तरह से उनको संजोया गया और revenue generate कर रहे हैं और स्टोर अपने किया लिए, गया है, हाँ। और हम अपने धरोहरों को अगर संभाल नहीं पाए तो ये क्वेश्चन मार्क लोगों पे नहीं है, हमारे पर है कि हम जम्मू के लोग रहते हुए, जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हुए हम अपनी धरोहरों को बचा नहीं पा रहे। तो ये क्वेश्चन मार्क, ऐसा नहीं है कि लोग आपको हेल्प नहीं करना चाहते, बहुत ज्ञानी लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बैठे हैं जो हर तरह से ज्ञान रखते हैं, हर तरह से उनको सिर्फ अपने पास लाकर बुलाएं, उनसे राय लें, उनसे बात करें और उनके बाद जो है ये एग्जीक्यूशन करवाएं, कोई भी करवाए लेकिन करवाएं। मैं आपको रोपवे का कह रही थी जी। रोपवे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेरे दिल के बहुत पास था। मुझे टूरिज्म मिला जब मुफ्ती साहब स्वर्गवास हो गए, तो उसके बाद मैडम आ गई, तो उसके बाद सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है मेरे पास रोपवे का आया। तो मैंने थोड़ा सर्च करना शुरू जब इसको किया तो मुझे ये पता चला कि मुफ्ती साहब ने वहाँ पर आकर इस रोपवे को लाल झंडी दे दी थी। लाल झंडी मतलब उन्होंने बिल्कुल जी। उन्होंने कहा ये तो फिजिबल ही नहीं है, ये यहाँ पे बन ही नहीं सकता। कोई एक्सपर्ट साथ में नहीं थे, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के 3-4 लोग उनके साथ थे, और एंड ऑफ द टाइम उन्होंने उसको बिल्कुल स्मैश कर दिया। एक वर्ड इतने बड़े चीफ मिनिस्टर का जाता है कि ये रोप वे फिजिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं मन में भी कहीं ना कहीं बात आती है कि आप ऐसा क्यों हुआ। फिर हमने सर्च वगैरह करनी शुरू की, तो इसका बहुत सारा काम जो था, पेपर वर्क जो था, तब यहाँ पे डीसी होते थे, उनसे जब मैंने बात की तो मैंने उनसे पूछा कि आप तब डीसी थे, सब कुछ आपके अंडर था, तो क्या ये फिजिबल नहीं था? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है मैम, ये बहुत फिजिबल प्रोजेक्ट था और ये बहुत अच्छे तरीके से चल पाता। फिर एक ये था कि कंसल्टेंट्स, जो इसकी कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी रोप पे खड़े किए हैं, राइट्स शायद कंसल्टेंट, हम, और उसमें मेंशन है फाइल के अंदर कि राइट्स वालों से हमने राय ली कि ये कितना फिजिबल प्रोजेक्ट है, कितना नहीं है। वो आए, उनके बहुत बड़े बड़े वाइस प्रेसिडेंट वगैरह आके यहाँ पर उन्होंने मीटिंग ली। मैंने नहीं ली, वो मेरे कमिश्नर को मैंने कहा कि आप इस पर मीटिंग लेकर मुझे एक रिपोर्ट बता दीजिए कि कितना फिजिबल है और कितना नहीं है। और राइटिंग में राइट्स वालों ने लिख के दिया है कि बहुत फिजिबल प्रोजेक्ट है और इसके बाद हम लोगों को इसको कहीं ना कहीं लाना चाहिए। मैंने फिर पूरी, हमने जब मीटिंग्स नीचे ले ली कमिश्नर को कह के, उसके बाद फिर हमने मैडम को अप्रोच किया और मैडम से मैंने सिर्फ एक बात कही, मैम ये प्रोजेक्ट जो है हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर हमारी सरकार के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि 30 साल पहले आपने एक रोपवे लगाया गुलमर्ग में और जम्मू में एक रोपवे नहीं लगवा पाई, कोई सरकार नहीं लगवा कोई नहीं लगवा पाई। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको अगर हम नहीं करेंगे तो शायद आने वाले समय के अंदर ये कभी उभर ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने जब उसकी पूरी राइटिंग्स देखी, राइट्स वालों का जब उन्होंने देखा, हर चीज़ देखी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट उसकी देखी और उसकी चीज़ें देखी, तो शी वॉज ऑल्सो कन्विंस। शी सेड कि ओके गो हेड, बिकॉज शी वॉज द मिनिस्टर ऑफ, यू नो, वी हैड टू कन्विंस अस समवेयर और द अदर, एंड इट वॉज नॉट कन्विंसिंग बट इट वॉज द राइट डिसीजन टेकन एट द राइट टाइम। एंड उसके लिए एफर्ट्स चाहिए होते हैं, नहीं तो अगर हमने एफर्ट्स नहीं लगाए होते, अगर हमने सर्च नहीं किया होता, तो शायद, बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द प्रोजेक्ट व्हिच एवरीबडी ऑफ जम्मू ऑफ पीपल वर टॉकिंग अबाउट। एक ये और एक तवी वाला प्रोजेक्ट तो मेरे पास था नहीं, वो आपका बॉडी उसका वो तो किसी और डिपार्टमेंट में था, बट ये मेरे हाथ में था। तो मैंने कोशिश करके इसके ऊपर भी बहुत सारी मीटिंग्स ली, इसके जो बॉटल नेक्स थे निकाले, फिर डिपकॉम्स वगैरह के साथ बैठ के उनके बहुत अच्छा सहयोग रहा, कोतवाल साहब का अच्छा सहयोग रहा, फिर नीचे हमारे डीसीज थे उनका बहुत अच्छा रहा, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा सहयोग रहकर ये प्रोजेक्ट जो है हम किसी भी फाइनल शेप पे इसको ला पाए। तो ये 1.5 साल की मेहनत है, जिस मेहनत के बीच में अभी 1.5 साल पीछे वाले नहीं थे, मेरे पास टूरिज्म नहीं था। अगर ये पहले होता तो ये पहले लग गया होता और दूसरा फेज भी आज खत्म हो गया होता। तो इस तरह की कोशिशें, जब आप कमिटमेंट करते हो, जब आप सोच के चलते हो कि आपको ये चीज़ें करनी है, तो और इस टाइम लिमिट में करनी है, आप बार कोड्स बना देते हो कि ये हमने इसमें करना, ये हमने करना, मुझे लगता है कि सब साथ देते हैं और सब अच्छे से भी आपको ऊपर लेके जाते हैं। ट्रू। एज अ वुमेन मिनिस्टर, ऑब्वियसली औरत घर से कदम बाहर रखती है तो उसको ज़्यादा तकलीफ़ें सहनी पड़ती है। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट एवरी वुमेन।
ठीक है, बट बीइंग ए मिनिस्टर, दैट टू अ वुमन मिनिस्टर, दैट टू फ्रॉम जम्मू, फ्रॉम द सॉइल ऑफ जम्मू, कितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई थी काम करते हुए? बहुत ज़्यादा। मतलब आप यकीन नहीं कर सकते कि क्रिएट की जाती थी मुश्किलें, र्यूमर्स फैला दिए जाते थे, और इतनी नेगेटिविटी आगे पीछे आपकी कर दी जाती थी कि आपको लगता था कि शायद अब जो है सब कुछ वाइंड अप करने का टाइम है। लेकिन फिर होता था कि हमको बनाया संगठन ने है, और संगठन ने बनाया, और हमारा दायित्व है संगठन के प्रति। उन्होंने विश्वास से बनाया और इसको हमें आगे लेके चलना है। और अगर आप अपने आप को राइट डिसीजंस में लेके जाओगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संगठन आपको गिव बैक करता है। और वही बात हुई कि जब समय आया तो उन्होंने हर चीज़ दी भी है, और आज उसी नियत को लेकर हम आगे चलने की कोशिश हो रही है। जी, as a woman, as a minister for culture also, I have seen you working rigorously for the upliftment of the culture and art also, because we belong to the art fraternity. But there are some, cultural policies जहाँ पे हम लोग we are lacking. So what was your point to take out those policies? Well, I was quite interested to bring up a culture policy here, and उसके लिए हमने ग्रुप्स भी बनाए थे, एंड वी हैड रिक्वेस्टेड जो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री है वहाँ से, और वहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बात की थी कि आप यहाँ पर आकर एक हमको हमें गाइड करो इसके अंदर कैसे करना है। बट वो कभी वो चीज़ हो नहीं पाई अनफॉर्चुनेटली। राइटर्स क्लब में ला पाई, बिल्डिंग खड़ी कर पाई, लेकिन उसकी एसेंस तो उसके कल्चर से है। तो कहीं ना कहीं कल्चर की भी पॉलिसी नहीं है, एंड टूरिज्म की पॉलिसी नहीं है। कल्चर तो बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि चाहे लिविंग है या नॉन टेंजिबल है, उसके अंदर आपकी इतनी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर फैली हुई। कम से कम 100-200 लोग जो प्राइवेट इस पे करते हैं, जिनके अपने घरों में हैं, जिनको पता नहीं उसकी क्या वैल्यू है, और कितनी आपकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी हैं, कितनी आपकी जगहों पे पढ़ी हैं, इतनी बढ़िया बुक्स हैं, उनकी डिजिटाइजेशन का कोई वो नहीं है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए हमको लगता था कि यहाँ पे कल्चर पॉलिसी आनी चाहिए, जबकि ऐसा हुआ नहीं, और हम बहुत लैग कर गए पीछे, और अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये ना वन गो में या वन उसमें नहीं आएगा, राइट। इट हैज़ टू टेक सो मच टाइम। बिल्डिंग्स खड़ी कर देनी कुछ नहीं है जबकि तब की उनकी रेस्टोरेशन ना हो। आपने देखा है अभिनव थिएटर, जब हमने रिस्टोर उसको किया 4 साल के बाद खुलवाया, तो आज उसकी हालत क्या है आप जाके देखो। मैं तो उस दिन हैरान रह गई कि लाइट्स नहीं चल रही हैं, कुछ नहीं चल रहा है। मतलब ये जब ये चीज़ें ब्यूरोक्रेसी के हाथ में जाना शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनका दिल भी उनको देखना चाहिए। कल्चर कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसके अंदर दिल से जुड़ा डिपार्टमेंट है, और हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। आपका अपना कल्चर ही नहीं रहेगा, आप अपने जनरेशन्स को क्या बताओगे आने वाली को? तो कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी पॉलिसी लानी चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। आपके टूरिज्म पॉलिसी लानी चाहिए। टूरिज्म में क्या पॉलिसी है? हमारी कोई पॉलिसी नहीं आज की डेट में। एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगी आपके माध्यम से कि इन दोनों के ऊपर आप एक्सपर्ट्स बुलाइए, दिल्ली से भी बुला के इसके ऊपर जो है आप दोनों को चयनित कीजिए, और दोनों बहुत जम्मू कश्मीर के लिए खासकर ये दोनों डिपार्टमेंट्स जो हैं उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना हॉर्टिकल्चर इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना और कोई महकमा है। रूरल डेवलपमेंट चल पाएगा, लेकिन हम अपनी इसकी अपने मन को ही ख़त्म कर देंगे, जो हमारी मिशन है उसको ही ख़त्म कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमें अभी आने वाले समय में इसको नुकसान होगा। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट ऑल्सो मैम, कि जैसे हमारा टेलीविजन स्टेशन है इस टाइम, दूरदर्शन केंद्र हमारा जम्मू का, इट्स ऑलमोस्ट डिफंक्ट। हमारा डीडी कशीर चैनल जो है सैटेलाइट चैनल, इट्स डिफंक्ट फ्रॉम द लास्ट सो मेनी ईयर्स। वी डोंट हैव द बजट्स एंड वी हैव सो मेनी क्रिएटिव मतलब indeficiencies there. And especially when I talk about the actor's life, because I am myself an actor, a producer, so we have got a major setback. We have a long pending demand of Duggar channel, जिसकी तरफ की फाइल्स मूव होती गई from one table to another, from one government to another. What you think? Do you think from this platform? I want to know your aspect कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनका फंक्शनल वैल्यूज हों, ताकि जो 10,000 लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, दे आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स टुडे। वो तो है ही है कि हमको इसके ऊपर बहुत, मैंने कहा कि कल्चर पॉलिसी जब आती है तो
तो ये सारी चीज़ें हमको नोट करनी होती हैं और ये सारी चीज़ें उन्हीं के बीच में आ जाती हैं। तो डुगर चैनल बहुत ज़रूरी है। जो हमारा आर्टिस्ट है आज कहीं ना कहीं उसको ये लगता है या कहीं ना कहीं वो बिहेवियर से इनके कि लगता है ना कहीं हम लोगों को क्या हमारा आगे क्या फ्यूचर है। इवन आपका इतनी सुंदर आपकी यहाँ पर धरोहर है, आपका भद्रवाह इतना एरिया अच्छा है, किश्तवाड़ है, बाहर के लोगों को आना चाहिए। यहाँ पे टूरिज्म पॉलिसी के अंदर एक और पॉलिसी बननी चाहिए, फिल्म्स वगैरह यहाँ पे बननी चाहिए, आपके इन चीज़ों को बढ़ावा मिलना चाहिए। डोगरी की मैं तो जब थी तो मैं ये कहती थी कि आप जो डोगरी राइटर्स हैं वो कम से कम एनिमेटेड आप छोटी छोटी क्लिपिंग्स बनानी शुरू करो। जैसे हम पंजाब की देखते हैं छोटी छोटी क्लिपिंग्स आती रहती है हमारी पंजाबी लैंग्वेज की, इसलिए डोगरी लैंग्वेज की भी क्लिपिंग्स जानी चाहिए। एनिमेटेड बच्चों के लिए छोटी छोटी स्टोरीज होनी चाहिए डोगरी के अंदर, ताकि वो इंटरेस्ट जनरेट हो। क्योंकि मैं इसीलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि मैंने वो स्कूल भी देखे हैं जहाँ पे डोगरी की टीचर है लेकिन स्टूडेंट्स नहीं है। तो इसीलिए हम समाज को भी कहीं ना कहीं उठना पड़ेगा अपने, कि हम बच्चों को इनकरेज करें कि वो डोगरी लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज है। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर तो ये क्लियर कट बताया है कि आपको 5 या 6 साल तक जो है अपनी लैंग्वेज में ही आपने पढ़ना है। तो वो एक ऐसा प्रावधान है, चाहे लोगों को पसंद नहीं आएगा, हमें बहुत शिकत करनी पड़ेगी। क्योंकि आज बच्चा 3 साल का होता है, 2 साल का होता है, तो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जाए बाहर और अंग्रेजी में कोई एक अच्छा सा सीख कर आए, लेकिन कभी वो इनकरेज नहीं करेंगे उसे डोगरी का कोई पुराना गीत सीखा हो या कोई डोगरी की पुरानी कोई राइम वो बोले, ऐसा नहीं करेंगे। तो आने वाले समय के अंदर और उसके मेंटल हेल्थ के लिए आपको पता नहीं है लेकिन अब्दुल कलाम साहब ने भी अपनी लोकल लैंग्वेज में ही अपनी माँ से सीखकर, मदर से सीखकर और स्कूल से सीखकर जो आज वो हमारे प्रेसिडेंट बने थे, इतने बड़े साइंटिस्ट थे वो। दिस इज सो इन्फॉर्मेटिव। इतने बड़े तो लोकल लैंग्वेजेस के अंदर आपको आना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, आपको एनहांस करता है। ये चीज़ें अभी सारी की सारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर है। तो हमें चाहिए कि हम अपने हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स कि हमारी एक लिविंग हमारी एक लैंग्वेज है उसको हम धीरे धीरे मारते जा रहे हैं। अंग्रेजी तो अंग्रेज आए चले गए 1947 के बाद, अब हमको उसको छोड़ देना चाहिए। अब एक समय के बाद जरूरी है, लेकिन तब तक जब तक आपके बच्चे लोकली आपके घर के अंदर क्या लैंग्वेज बोलते हैं उसके अंदर वो डेवलप भी होता है। और मुझे लगता है आने वाले समय मुझे भी हम लोगों को भी एक टास्क दिया हुआ है कि इसके ऊपर हम लोगों ने लोगों को इनकरेज करना है, लोगों को पास जाना है और मास जो है उसको बताना है कि भाई कोविड आ गया हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया, लेकिन इसके ऊपर भी लोगों को अवेयर करना है कि आपकी लोकल लैंग्वेज में आपकी ज़्यादा अच्छा बच्चा जो है डेवलप होता है। जी, so should we expect that whenever you are again in the power, you are going to take up all these points which are noted today? It's what is going to happen the next day. It's not pre-predicted every time. We never predicted कि I'll be an MLA or I'll be a minister, and this came out just sudden एकदम से आगे। But I worked for my मैं अपने संगठन के लिए काम कर रही थी, तो उस काम को शायद देखकर क्या होगा, अभी भी हम काम कर रहे हैं, जो काम मिलता है तो हमारा नियत है, चाहे हम मिनिस्टर बने, चाहे हम बूथ के हों, चाहे हम प्रेसिडेंट हों, चाहे कुछ भी हो, अपना काम हम ट्रुथफुली आपका काम बोलता है प्रिया मैम, and you have been giving a tough competition in a very short span of your tenure. So do you feel competition from the men folk also inside and outside? Quite true. But it's just कि what best fits in everywhere ना, तो जहाँ जिसको लगेगा जिसको फिट इन करना है, मुझे लगता है संगठन में फिट इन करेगा। Yeah, hopefully. And one last question actually. I don't want to end up this rendezvous. This is so beautiful and so energetic, but the time is crucial. One last question ma'am. आज से 20 साल के बाद, where do you find Priya Sethi? I can't say. But I'll still be working. If I live, I'll still be working for my people. I'll still be working because it's now inborn somewhere or the other. When you sit the whole day at your home somewhere or the other because of something or the other, you just start thinking you really need to work for your. I really want to work with the women. I was very impressed. कोई 20 साल पहले 25 साल पहले जब हम लोग पढ़ते होते थे, जब मैं गुजरात भी जाती थी तो वहाँ की औरतें झोला लेकर ना आती थी, कोई सरफ का पैकेट धोती थी, कभी किसी का, कभी फाफड़े बना के जाती थी। और आज मैं देखती हूँ कि वो ढोती नहीं है, अब किसी को ढोने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका अपना डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर इवन हमारे गुजरात का सारा सामान जो है यहाँ नजर आता है। जी बिल्कुल, आपके हर चीज़, नमकीने वमकीने सब नजर आते हैं यहाँ पर।
तो मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय के अंदर हम महिलाएं भी ऐसा जम्मू कश्मीर के अंदर काम करें कि हमारी भी जो यहाँ की चीज़ें हैं वो बाहर जाएं और लोगों को पता चले कि हमारा भी यहाँ का लोकल जो है बहुत अच्छा है और रिलिश करने वाला है, और कहीं ना कहीं उसके ऊपर काम करेंगे आने वाले समय में। Thank you so much, ma'am, for being with us, and we want you to be blessed with the brightest future because our future also depends on that. Thank you for being with us. Thank you So, so guys, much. Thank you. वो लोग जो दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, उंगलियां उठाने से पहले ये देखिए कि हम किसी का कितना सहयोग करते हैं, क्योंकि बिल्कुल सही कहते हैं, ए जोश बला को चुन को भी दो चार थपेड़े हल्के से, वो लोग जो साहिल पर रहकर तूफान का नजारा करते हैं। फिर होगी मुलाकात, इस वक्त दीजिए इजाजत, नमस्कार।